Okay, students, good morning to all of you, first of all. And uh, we, in the previous class, we were studying about page replacement policies, and we have completed that. And now, in the today's session, we will study the. Okay, let first of all students will join. Okay, student, can you see this Excel file? Yes, student, are you able to see this Excel file? Yes, sir. Okay. Yes, student, are you there? Kindly Yes, sir. respond. Yes, sir. Okay, can you see this Excel file? Yes, sir. Visible. Okay. So in this Excel file, I have given the marks to those students who have finished their Viva. But still, I didn't uploaded this uh, file in your Google Classroom. The reason, the only reason is that because still few of the student is still remaining to have the Viva session. So as soon as this will be over, I will uploaded this marks file also in your Google Classroom. Okay, and some of the student was absent during the Viva session. They will be treated as absent for the Viva one, and but few of the students, as you can see in the remarks file, they were have some issue. So those who had some issues during the Viva, I will provide you the time in the end slot which will be conducted on 29th of June. So those who was remaining and had some issues during the Viva, they will be included in that. Okay, I will again I will give you this the timing for them, that what will the updated timing for those students who faced certain kind of difficulty. Okay, but those who was absent during this Viva session, they will be remain treated as absent. Okay, so this was the few information which I was sharing with you. So come upon to the today's session topic. So what we was studying, student, in the previous session, can anyone tell me in brief? सर रिप्लेसमेंट पॉलिसी सर, उसमें सर ऑप्टिमल हो गया था, एलआरयू बचा था। एलआरयू बचा था क्या? किसका एलआरयू बचा हुआ था? एलआरयू नहीं हुआ है क्या, या हो गया है? सर हो गया था एलआरयू सर।
Yes, LRU ये has सर come. LRU हो गया था, MFU बचा था सर। MFU बचा था। MFU में क्या है, MFU में इट इज लाइक अ काउंटर कि मैक्सिमम टाइम किसने यूटिलाइज किया गया है, और डिपेंडिंग अपॉन द काउंटर वैल्यू वी विल रिप्लेस द फाइल। ओके, MFU उतना पूछा नहीं जाता है, इट इज टर्म्ड इन some of the examination, but try to solve any problem from your side. If you find any difficulty to solve that, then do let me know. Okay, so let's start how we can implement the page table in our system. So हम अभी तक ये जानते हैं, वी हैव सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पेज टेबल की। हमारे पास जो पेज टेबल होता है वो क्या होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ मेन मेमोरी। और हमारा मेन मेमोरी के अंदर में ही क्या होता है, वी हैव डिफरेंट फ्रेम्स which will be located into the main memory. So both this part will be in main memory. So अगर आपका इवन एक पेज हिट भी हो रहा है तो उस केस में अगर तो क्या होगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था आई थिंक, कि what will the probability that the page will be found in the page table, and अगर आपका मिस होगा तो वो कहाँ होगा, मेन मेमोरी में होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये जो पेज टेबल है इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया गया सिस्टम में, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो जो पेज टेबल होता है केप्ट इन द मेन मेमोरी, एज आई टोल्ड यू। पेज टेबल बेस रजिस्टर होता है, पॉइंट्स टू द पेज टेबल। अब चूंकि मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी में जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी लोकेशन पे रह सकता है और हर एक प्रोसेस के लिए अपना एक पेज टेबल बनता है। ठीक है, तो अब इट कैन पॉसिबल दैट पेज टेबल हैज अ डिफरेंट बेस एड्रेस, तो इसको कहा जाता है पेज टेबल बेस रजिस्टर, जो कि कंटेन करता है उस एड्रेस को जहां की आपका पेज टेबल इनिशियली स्टोर्ड होता है। ठीक है, इनिशियल इसका भी कुछ लोकेशन होगा कि यहां से यहां मेमोरी ब्लॉक, ये अगर आपका 4168 ऐसा लोकेशन पे है तो ये हो गया बेस एड्रेस उसका। और एक होता है आपका लेंथ रजिस्टर। लेंथ रजिस्टर आपका बतलाता है कि व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द साइज ऑफ द पेज टेबल। पेज टेबल का साइज क्या है, उसमें कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं पॉसिबल हैं, क्या पेज टेबल का साइज हो सकता है, व्हाट इज द लेंथ, मतलब स्टार्टिंग टू एंड अगर आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट द साइज ऑफ द पेज टेबल। तो PTLR जो होता है दैट सिग्निफाइज दैट व्हाट इज द पेज लेंथ रजिस्टर, एंड इट शोज दैट that what is the size of your page table. Okay, now in this scheme every data and instruction access requires two memory access, क्योंकि ये भी आपका क्या है, पेज टेबल भी आपका कहाँ पे स्टोर्ड है, आपका मेन मेमोरी में स्टोर्ड है। तो अगर हम बात करें कि अगर कोई भी पेज को आप रेफर कर रहे हैं, डेटा को रेफर कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आप क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका कैसे एक सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा और ये लॉजिकल एड्रेस कैसे एक फिजिकल एड्रेस में कन्वर्जन होगा। तो उसमें आपने देखा होगा कि हम क्या करेंगे, पेज टेबल का जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट होता है उसका एक पार्ट हमें कहाँ पे लेके जाता है, पेज टेबल में लेके जाता है, और एक पार्ट आपका ऑफसेट के लिए होता है। ऑफसेट ये डायरेक्टली फिर जो यहाँ से एड्रेस निकल के आता है फ्रेम का, उसके साथ क्या होता है, ऐड होकर के हमें फिर फ्रेम का लोकेशन मिलता है। तो अब अगर हम यहीं पे समझने की कोशिश करें, इफ देयर इज अ हिट तो क्या होगा, वो क्या होगा कि आपका पेज टेबल में जाएगा, पेज टेबल को एक्सेस करेगा, फिर एक्सेस करेगा तो उसको एक लोकेशन मिलेगा कि दिस इज द लोकेशन वेयर द पेज 4 इज स्टोर्ड। तो वो फ्रेम नंबर 6 में है, तो वो क्या होगा, फिर यहाँ पे फ्रेम नंबर 6 में जाएगा और ये ऑफसेट में ऐड होकर के फ्रेम नंबर 6 में देखेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक मेमोरी एक्सेस यहाँ पे जा रहा है आपका मेन मेमोरी एक्सेस, और एक मेन मेमोरी एक्सेस यहाँ पे जा रहा है।
तो अगर कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन को अगर आप रीड करना चाहते हैं तो आपका क्या होगा, एक बार आप पेज टेबल को एक्सेस करेंगे, वहां पे आपका एक मेन मेमोरी एक्सेस जाएगा, और एक बार आप कहाँ एक्सेस करेंगे, जो मेन मेमोरी जहां पे कि आपका वो फ्रेम स्टोर्ड है, क्योंकि वो आपको डेटा, ये यहां से आपको लोकेशन मिल गया कि कौन से फ्रेम में प्रेजेंट है, बट उस फ्रेम में कहाँ पे वो एग्जैक्टली डेटा है वो आपको ऑफसेट के हेल्प से आप क्या करेंगे, उसको रेफर करेंगे। तो आपका क्या कहलाएगा, फिर ये आपका टू मेन मेमोरी एक्सेस हो जाएगा, हर एक जो भी रेफर करेंगे फॉर ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन और डेटा आपके लिए दो मेमोरी एक्सेस होगा, ठीक है, वन फॉर द पेज टेबल, वन फॉर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। द टू मेमोरी एक्सेस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व use of special fast lookup hardware cache called associative memory। आपने कभी ये टर्म सुना है, एसोसिएटिव मेमोरी? यस स्टूडेंट, डू यू नो व्हाट इज एसोसिएटिव मेमोरी? नो सर, एसोसिएटिव मैपिंग सुने, मेमोरी नहीं। ओके, एसोसिएटिव मैपिंग सुने हैं, ओके, और कौन कौन सी मैपिंग सुने हैं? डायरेक्ट मैपिंग सर, और एसोसिएटिव। डायरेक्ट मैपिंग एंड एसोसिएटिव मैपिंग, ओके, एंड आपने सेट एसोसिएटिव भी आई थिंक सुना होगा। यस सर, दोनों कॉम्बिनेशन होता है। यस, तो जो आपका जिस मेमोरी में एक स्पेशल कहा जाए, ये एक स्पेशल मेमोरी होता है कैश एसोसिएटिव मेमोरी, और इसको आप कह सकते हैं ये एक फास्ट हार्डवेयर डिवाइस है विच इज वर्क लाइक द कैशे मेमोरी। एंड व्हाट इज द स्पेशलिटी अबाउट द कैशे मेमोरी इज दैट कि यहां पे आप क्या कर सकते हैं, with the help of associative mapping। associative mapping में आपका क्या होता है, do you know about this? what associative mapping में, direct mapping और associative mapping में क्या difference है? Can you tell me? Anyone? Right now here number of student is okay, 19 student here right now. डायरेक्ट मैपिंग में सर मेन मेमोरी से जो भी मतलब डाटा होता है ब्लॉक के रूप में, कैशे में सर डायरेक्ट एक मतलब एक लाइन में एडजस्ट हो जाता है, मतलब फिक्स होता है कि इसमें जाएगा। जबकि सर एसोसिएटिव में होता है तो उसमें सेट की तरह रहता है सर। सेट में सर 4 या 5 जिस तरह का सेट होगा, एसोसिएटिव सेट होगा उस तरह का, मतलब 4 या 5 लाइन होगा तो उस लाइन में किसी में भी जा सकता है। वो आप सेट एसोसिएटिव के बारे में बात करें। एक मैं चीज बता दूं एसोसिएटिव मेमोरी के बारे में कि आप क्या कर सकते हैं, इसमें हर एक लोकेशन को पैरेलली एक्सेस कर सकते हैं, एक साथ आप हर एक लोकेशन को पैरेलल एक्सेस कर सकते हैं। और वहां पे हु इज दिस टेक बेस, कोई है क्या आपके क्लास में? नो सर। ओके, तो आपका एसोसिएटिव मेमोरी में क्या फंक्शनैलिटी होता है, इट हैज ए स्पेशल फंक्शनैलिटी दैट यू कैन एक्सेस ईच एंड एवरी लोकेशन इन अ पैरेलल फैशन। पैरेलल फैशन में हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और क्या होता है, ये कैशे मेमोरी की तरह होता है। और कैशे मेमोरी को जब मैंने आपको थोड़ा सा मेमोरी हायरार्की के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, तो रजिस्टर के बाद जो आपका मेमोरी था वो कौन सा था, कैशे मेमोरी था, जो कि बहुत फास्ट एक्सेस कर सकता है डिवाइस को। तो चूंकि यहाँ पे क्या आ रहा था, प्रॉब्लम ये अराइज हो रहा था कि हमको हर एक एक्सेस करने के लिए, चाहे वो डेटा हो चाहे वो इंस्ट्रक्शन हो, दो मेन मेमोरी का एक्सेस का रिक्वायरमेंट था। तो यहाँ पे अगर आप कहें कि मेन मेमोरी को एक्सेस का स्पीड जो है वो आप क्या है 100 नैनोसेकंड है, तो आपका क्या होगा इस केस में अगर आप पेज टेबल के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आपका क्या होगा 2 into, क्योंकि 2 बार एक्सेस कर रहे हैं आप,
तो 200 नैनोसेकंड के अप्रॉक्स आपका क्या होगा, एक्सेस होगा। अभी मैंने ये सिंपल कैलकुलेशन किया है, अभी मैंने यहाँ पे पेज फॉल्ट को कंसीडर भी नहीं किया है, क्योंकि पेज फॉल्ट सर्विस टाइम भी तो एक फैक्टर होगा, जो कि मान लिया जाए ये तो हिट है कि आपका डायरेक्ट मेमोरी में गया, पेज टेबल में गया, पेज टेबल में उसको वो डेटा मिल गया और वो क्या हुआ, जाके मेन मेमोरी में एक्सेस कर लिया। तो एक बार यहाँ पे एक्सेस करने के लिए क्या लगा, उसको 100 नैनोसेकंड का टाइम लगा, और यहाँ पे भी एक्सेस करने के लिए 100 नैनोसेकंड का, तो टोटल अभी 200 नैनोसेकंड का टाइम लगा। आई एम कंसिडरिंग द फैक्ट दैट स्टिल आई डिडंट कंसिडर्ड पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए 200 नैनोसेकंड, इट इज कंपैरेटिवली वेरी लार्ज इन कंपेयर टू द मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। सो अब हम इसको डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, तो डिक्रीज करने के लिए हमारे पास एक मेथड आया कि हम यूज करेंगे एक एसोसिएटिव मेमोरी का वर्जन, जिसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, एसोसिएटिव मेमोरी है तो आप क्या कर सकते हैं, पैरेलली सारे लोकेशन को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो इन कंपैरिजन ऑफ दैट क्या होगा, टाइम बहुत कम लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीक्वेंशियल आप उसको एक्सेस करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सेस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, बट स्टिल यू नीड अ वन मेमोरी एक्सेस टाइम। अब यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल एक्सेस हो रहा है, साथ ही साथ वो कैशे मेमोरी भी है, तो आपका क्या होगा, टाइम जो होगा, टाइम टू एक्सेस विल बी लेस इन कंपैरिजन टू द मेन मेमोरी। और ये जो एसोसिएटिव मेमोरी है, इसको TLB भी कहा जाता है, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। यस स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आपका जो प्रॉब्लम अराइज हो रहा था पेज टेबल इंप्लीमेंटेशन के दौरान, कि आपको किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शन को रीड करने की रिक्वायरमेंट हो रही थी, तो आपका 2 मेमोरी एक्सेस रिक्वायरमेंट लग रहा था। अब क्या होगा, अब आप चूंकि TLB जो होगा, TLB कंटेन करेगा जो कुछ पेजेस कंपैरेटिवली साइज तो इसका लो होगा, बट क्या होगा, स्पीड इसका हाई होगा। अब स्पीड इसका हाई होगा तो जो हमारे TLB में प्रेजेंट होंगे वो उनका क्या होगा, दे कैन बी एक्सेस इन अ हाई स्पीड मैनर। तो अब वहां पे क्या होगा, एक्सेस टाइम, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, EMAT जो आपका होता है, दैट विल बी इन कंपैरिजन टू दैट, आपका TLB के आने के कारण इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे कि सम TLB स्टोर्स एड्रेस स्पेसिफिक आइडेंटिफायर in each TLB entry uniquely identifies each process to provide address space protection for that process। अब क्या होगा, TLB या एसोसिएटिव मेमोरी में क्या होगा, आपने देखा था कि वहां पे क्या कर सकते हैं, हम हर एक एड्रेस के अलोंग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमारे पेजेस होंगे, पेजेस और फ्रेम्स, यहाँ पे भी हमारे पेजेस होंगे, और वो जो डेटा कंटेन करेंगे दैट विल बी हाई स्पीड बिकॉज इट इज स्टोर्ड इन द कैशे मेमोरी। ओके, कैशे मेमोरी। अब चूंकि हर एक जो भी TLB होगा, सम TLB, ये क्या होगा, स्टोर करेगा प्रोसेस से रिलेटेड, क्योंकि पेजेस जो हैं वो किसके लिए बन रहे हैं, प्रोसेस के लिए हमारा बन रहा है। और अगर इसमें नहीं है, अगर हमारा किसी अदर प्रोसेस P1 के लिए अभी हम वर्क कर रहे थे, और नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस PK या PJ आ गया, तो उसको उस केस में क्या करना पड़ेगा, TLB में जो भी डेटा था उसको फ्लश आउट करके बाहर निकाल दीजिए और फिर से इसको एंट्री करना पड़ेगा। और TLB की जो एंट्री होती है वो बहुत स्मॉल होती है, टिपिकली ये 64 से लेके 124 एंट्री 1024 एंट्री तक करता है। इट मींस नंबर ऑफ एंट्रीज कितने हो सकते हैं, इसका साइज जो है वो 64 से लेके 1024 एंट्रीज हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अब हिट होगा, TLB हिट होगा तो वो क्या होगा, वो तो फास्ट होगा, बट TLB मिस होगा। ऑन अ TLB मिस द वैल्यू इज लोडेड इनटू द TLB फॉर द फास्टर एक्सेस नेक्स्ट टाइम, रिप्लेसमेंट पॉलिसी मस्ट बी कंसिडर्ड।
अब जो मैंने रिप्लेसमेंट पॉलिसीज बहुत सारी आपको बताई है, इन रिप्लेसमेंट पॉलिसीज का यूज करके अगर आपका मिस हो रहा है, मिस का क्या मतलब है स्टूडेंट, आप सभी जानते होंगे कि जो कंटेंट हम सर्च कर रहे थे वो कंटेंट प्रेजेंट नहीं है हमारे टीएलबी के अंदर में। अगर टीएलबी के अंदर में प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, हायरार्की को फॉलो करते हुए टीएलबी सबसे पहले क्या होगा, इट मीन्स कि आपका जो सीपीयू को डेटा मिलेगा वो सबसे पहले क्या होगा, टीएलबी में जाके चेक करेगा, टीएलबी में चेक करेगा इस एड्रेस को अलॉन्ग। तो ये यहाँ पे चूंकि पैरेलल यहाँ पे एक्सेस हो रहा है तो क्या होगा, फास्ट एक्सेस कर पाएंगे। हिट होगा तो डायरेक्टली क्या करेगा, उसको कन्वर्ट ऑफसेट में ऐड करके वो वहां से डेटा रीड कर लिया, यहीं पे आपका डेटा प्रेजेंट। बट अगर मिस हो गया तो क्या होगा, मिस होगा तो वो क्या होगा, सबसे पहले पेज टेबल में जाएगा, पेज टेबल में अगर हिट हो गया तो क्या होगा, पेज टेबल से ये डेटा फिर से लिया जाएगा और टीएलबी में स्टोर कर दिया जाएगा। और अगर यहां भी मिस हो गया तो वो डेटा क्या होगा कि मेन मेमोरी में जाएगा, चेक होगा कि मेन मेमोरी में है या नहीं है, मेन मेमोरी में है या नहीं है। अगर मेन मेमोरी में होगा तो मेन मेमोरी से फिर पेज टेबल में लाया जाएगा, पेज टेबल से फिर टीएलबी में दिया जाएगा। तो दिस इज द सिनेरियो वेयर पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज वर्क्स। अब देखिए एसोसिएटिव मेमोरी जो होता है, यहाँ पे सबसे खासियत होती है एसोसिएटिव मेमोरी की कि ये क्या होता है, इसमें पैरेलल सर्च हो सकता है, ठीक है। और एसोसिएटिव मेमोरी में क्या होगा, पेज नंबर होगा, फ्रेम नंबर होगा। तो पेज नंबर के हेल्प से हम यहाँ क्या करते थे, पेज टेबल में हमारे पास पेज नंबर है यहाँ पे 0 1 2 3 सो ऑन। अब पेज नंबर है तो यहाँ पे हमें क्या मिलता था, यहाँ पे मिलता था कि किस लोकेशन पे, फ्रेम नंबर 0 पे, फ्रेम नंबर 1 पे है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पेज नंबर के अलॉन्ग विथ उसको फ्रेम नंबर भी प्रेजेंट है। तो एसोसिएटिव में जो एड्रेस ट्रांसलेशन होता है वो पी और डी का कैसे एड्रेस ट्रांसलेशन होता है, पी इज एसोसिएटिव रजिस्टर गेट्स फ्रेम आउट, ये फ्रेम नंबर को क्या होता है, जो फ्रेम नंबर है हमारे यहाँ पे उसको बाहर निकालता है। अदरवाइज फ्रेम नंबर फ्रॉम पेज टेबल इन द मेमोरी, इट मींस कि ये केस क्या है, ये केस है मिस का और ये केस क्या है, ये केस है हिट का, ठीक है। कि अगर आपका, अब हम हिट किसके बारे में बात कर रहे हैं, इन रिलेटिव टू टीएलबी हिट के बारे में बात कर रहे हैं कि टीएलबी में हिट हुआ तो आप क्या करेंगे, जो एसोसिएटिव रजिस्टर में पी को रीड कर लिया जाएगा और जो फ्रेम नंबर यहाँ पे था वो फ्रेम नंबर में जो भी डेटा हमारा प्रेजेंट था वो बाहर निकाल दिया गया और वो रीड कर लिया गया, ठीक है। और अगर मिस हो गया तो क्या होगा, पेज टेबल को एक्सेस करेगा, पेज टेबल में अगर वो डेटा प्रेजेंट है तो ठीक है वहां से ले लिया जाएगा, नहीं अगर प्रेजेंट है वहां भी मिस हो गया तो वो क्या होगा, फिर मेन मेमोरी के पास जाएगा। सो इन दिस केस वाया दिस मेथड आपका क्या होता है, स्पीड इनहैंस हो जाता है। ना यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है पेजिंग, जहां पे कि हम टीएलबी को यूज करते हुए कैसे एक्सेस करते हैं सिस्टम को, ठीक है। तो सीपीयू, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सीपीयू एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है जिसमें पी और डी दोनों होता है। पी क्या हो गया, पी बेसिकली आपको पेज नंबर देता है और डी क्या हो गया, डी हो गया आपका ऑफसेट। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि आपका पी जो कि पेज नंबर है, पेज नंबर चूंकि यहाँ भी पेज नंबर आपका स्टोर है कहाँ, टीएलबी के अंदर में। तो टीएलबी के अंदर में पेज नंबर है तो आप क्या करेंगे, एक बार टीएलबी को एक्सेस करेंगे क्योंकि आपका यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल एक्सेस हो पाएगा आपका। तो पैरेलल एक्सेस होगा तो वो जैसे ही आपको पेज नंबर मिलेगा तो वहां से आपको फ्रेम नंबर भी मिल जाएगा। फ्रेम नंबर जैसे ही मिलेगा तो ये कहलाएगा आपका, इस टर्म को कहा जाता है कि आपका टीएलबी हिट हो गया। टीएलबी हिट हो गया तो यहां से जो फ्रेम नंबर मिला एफ उसको ऐड कर दिया जाएगा ऑफसेट में और जो हम फिजिकल लोकेशन था उसको क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे। तो ये तो हुआ टीएलबी हिट के बारे में। लेकिन अगर टीएलबी मिस हो गया तो उस केस में क्या होगा, टीएलबी मिस हुआ तो सबसे पहले एक तो हम टीएलबी को एक्सेस करेंगे। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं टीएलबी अगर हिट हो गया तो उस केस में क्या करेंगे, एक हम टीएलबी को एक्सेस करेंगे और एक हम मेन मेमोरी को एक्सेस करेंगे। एक बार हम टीएलबी को एक्सेस किए फिर क्या हुआ, मेन मेमोरी को एक्सेस कर लिए। अगर टीएलबी मिस हुआ तो उस केस में क्या होगा, टीएलबी मिस हुआ तो उस केस में क्या होगा,
उस केस का एक सब केस है कि टीएलबी मिस होने पे हम टीएलबी को एक्सेस करेंगे, और टीएलबी को एक्सेस करने के बाद हम क्या करेंगे, पेज टेबल को एक्सेस करेंगे। अब पेज टेबल को जो एक्सेस किया जाएगा उसमें क्या होगा, हमें फ्रेम नंबर मिलेगा। अब इस फ्रेम नंबर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे डी ऑफसेट प्रोड्यूस हुआ था उसके साथ हम जो जनरल जो पहले हम यूज करते थे पेज टेबल इंप्लीमेंटेशन को, जहां पे कि टीएलबी नहीं होता था, उस केस में क्या होता था, उस केस में क्या होता था, हम डायरेक्टली पी को यहाँ पे एक्सेस करते थे, पेज नंबर में गए, उस पेज नंबर में देखिए कि क्या हमारा किस फ्रेम लोकेशन पे है, किस फ्रेम लोकेशन पे, तो उस फ्रेम लोकेशन पे जान गए हम और उसमें ऑफसेट को ऐड कर लिए और हम फिजिकल मेमोरी को एक्सेस कर लिए। तो पेज टेबल को एक्सेस करेंगे और पेज टेबल को एक्सेस करने के बाद क्या करेंगे, हम मेन मेमोरी को एक्सेस करेंगे। ठीक है, मेन मेमोरी को एक्सेस करेंगे। और ये वो केस हुआ जहां की पेज टेबल में आपका हिट हो गया। इट मींस कि जिस पेज के लिए हम सर्च कर रहे थे वो पेज हमारा क्या है, पेज टेबल में कंटेन है। अब ये भी तो हो सकता है ना कि पेज टेबल में मिस हो गया, पेज टेबल में क्या हो गया, मिस हो गया, तो उस केस में क्या करेंगे, हमने टीएलबी को तो एक्सेस किया ही किया था, जो टीएलबी को एक्सेस किया ही किया था, और साथ ही साथ अब क्या हो गया, पेज टेबल में मिस हो गया, तो पेज टेबल में मिस होने के कारण हम क्या करेंगे, मेन मेमोरी को एक्सेस करेंगे, और मेन मेमोरी को एक्सेस करने के बाद हम क्या करेंगे, वो जो पेज फॉल्ट हुआ था, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम आपका ऐड होगा उसमें जाकर के। तो आपका इस तरह से पेजिंग हार्डवेयर को हम इंप्लीमेंट करते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि पेजिंग हार्डवेयर को विदाउट टीएलबी कैसे आप मैनेज करते हैं और विथ टीएलबी कैसे मैनेज करते हैं, वो आपको बता दिया। डज एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद दिस पेजिंग हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन विद द टीएलबी? सर जो पेज नंबर है उसका हम लोग लाइन नंबर कह सकते हैं सर, जैसे सीओए में पढ़े हम लोग। लाइन नंबर स्पेसिफिकली नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि लाइन नंबर जो कॉन्सेप्ट है वहां पे आपने देखा होगा कि अब लाइन नंबर का जो कॉन्सेप्ट था आपने किस में, डायरेक्ट में मैपिंग में आपने देखा होगा। यस सर, उसी में पढ़ते हैं। यस, डायरेक्ट मैपिंग में देखा हो तो देखा होगा कि आपका जो मेमोरी होता है, जो ये सॉरी नॉट मेमोरी, जो आपका लॉजिकल एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस को वहां हम 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम लॉजिकल एड्रेस को सिर्फ 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। एक हो गया आपका पेज नंबर और एक हो गया आपका ऑफसेट, ठीक है। वहां पे क्या होता था, ऑफसेट भी होता था, लाइन नंबर भी होता था, और एक और पार्ट है उसको मैं भूल रहा हूँ। यस टैग सर, यस टैग, यस टैग, ठीक है। तो वहां क्या होता था, विद द हेल्प ऑफ टैग एंड ऑल दैट आप क्या करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ 2 ही पार्ट को, लॉजिकल एड्रेस को सिर्फ हम 2 ही पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। ओके, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे चूंकि क्या हो रहा है ना कि टीएलबी के एक्सेस, टीएलबी के होने के कारण क्या हो रहा है कि हम जान रहे हैं कि टीएलबी क्या है, ये वर्क कर रहा है एज ए कैशे मेमोरी। तो इसका जो एवरेज एक्सेस टाइम होगा वो क्या होगा, इन कंपैरिजन टू मेन मेमोरी, इन कंपैरिजन टू मेन मेमोरी ये क्या होगा, कम होगा, है कि नहीं। तो अगर अब आप कहेंगे कि क्या फायदा है, फायदा ये है कि टीएलबी में अगर हिट हुआ तो आपको कैशे मेमोरी को एक्सेस करने में जितना टाइम लगेगा प्लस एक मेन मेमोरी में एक्सेस करने में जितना टाइम लगेगा वो, ठीक है। इसको मैं आगे चल के एक न्यूमेरिकल में भी आपको समझाऊंगा। देखिए अब यहाँ पे ये है कि इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होगा, ठीक है, या इफेक्टिव एक्सेस टाइम क्या होगा। एसोसिएटिव को लुकअप, ओके, एसोसिएटिव जो है उसको लुकअप करने में अगर एप्सिलॉन टाइम यूनिट लग रहा है, ठीक है, और ये जो टाइम होगा कैन बी लेस देन 10% ऑफ मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। मतलब कि आपका अगर मेन मेमोरी को एक्सेस करने में
मेन मेमोरी को एक्सेस करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो अप्रोक्सीमेटली अगर 100 नैनोसेकंड लग रहा है, तो जो आपका एसोसिएटिव मेमोरी को या टीएलबी को जो एक्सेस करने में टाइम लगेगा वो क्या होगा, टाइम टू एक्सेस द टीएलबी विल बी लेस देन 10%। इट मींस कि आपका 10 नैनोसेकंड का टाइम लगेगा। ओके, 10 नैनोसेकंड का टाइम लगेगा। तो अब देखिए यहां पे आपका एक होता है हिट रेशियो। हिट रेशियो क्या होता है कि आपने अगर जो मेमोरी है उसको एक्सेस किया, जिस कंटेंट को आप सर्च करना चाह रहे थे वो कितने टाइम आपके मेमोरी में प्रेजेंट था। ओके, कितने टाइम वो मेमोरी में, जैसे कि हमको पेज नंबर 4 एक्सेस करना था, वो अगर मेमोरी में प्रेजेंट है तो वो हो गया हिट। तो टोटल नंबर ऑफ हिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सेस, मेमोरी एक्सेस। अब ये मैं क्या कर रहा हूं, ये कह रहा हूं कि जिस टाइप का मेमोरी है उस टाइप में हमने कितना एक्सेस किया, टीएलबी को कितने टाइम एक्सेस किया और उसमें कितनी बार हिट मिला, तो दैट विल बी नोन एज हिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सेस। ये कहलाएगा आपका हिट रेशियो। ओके, और इसको हम हिट रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, हिट रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फा से। और यहां हम देखिए हिट रेशियो का डेफिनेशन क्या है, परसेंटेज ऑफ टाइम दैट अ पेज नंबर इज फाउंड इन द एसोसिएटिव रजिस्टर, रेशियो रिलेटेड टू नंबर ऑफ एसोसिएटिव रजिस्टर। ये रेशियो सिर्फ आपका एसोसिएटिव रजिस्टर से रिलेटेड है। अगर हम मानते हैं कि अल्फा की वैल्यू आपका 80% है, 80% से भी ज्यादा होता है आपका, 90% तक आपका, इवन अल्फा 95, 98, 99% तक होता है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या है, 80% है, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 20 नैनोसेकंड है फॉर द टीएलबी सर्च, और मेमोरी के लिए क्या है 100 नैनोसेकंड गिवन है। तो इफेक्टिव एक्सेस टाइम कितना हो जाएगा, एक्सेस करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, एक्सेस करने में कितना टाइम लगेगा। तो आपका देखिए क्या होगा कि अगर जब आपको, अभी आप ये जो यहाँ पे गिवन है इसको आप भूल जाइए, ठीक है, मैं जो आपको बता रहा हूं वो याद रखिए कि आपका इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होगा इसके लिए। तो सिंपल, मैं जो तरीका बता रहा हूं उस तरीका से आप हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए आपको अगर डायग्राम याद होगा, ओके, डायग्राम अगर आपको याद होगा तो यहां पे आपको याद होगा कि हम क्या ले रहे थे कि आपका एक बार टीएलबी हिट हो रहा है, एक बार आपका टीएलबी मिस हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टीएलबी को एक्सेस करेंगे और फिर मेन मेमोरी को एक्सेस करेंगे। इट मींस कि अगर हिट हुआ जिसका रेशियो क्या है अल्फा, अब हिट हुआ तो आप क्या करेंगे, टीएलबी को एक्सेस टाइम, टीएलबी का एक्सेस टाइम निकालेंगे, प्लस आप मेन मेमोरी का क्या निकालेंगे, एक्सेस टाइम, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है टी ऑफ टीएलबी प्लस टी ऑफ मेमोरी एक्सेस टाइम। ओके, प्लस अब देखिए मैं हायरार्की वाइज चल रहा हूं, अगर हिट हुआ तो क्या होगा, टीएलबी को एक्सेस करेंगे, मेन मेमोरी को एक्सेस करेंगे। बट अगर मिस हुआ तो क्या करेंगे, मिस रेशियो आप कैसे निकाल सकते हैं, मिस रेशियो इज डायरेक्टली अपोजिट टू द हिट रेशियो। अगर आपका 80% टाइम हिट हो रहा है तो इट मींस क्या है, 20% टाइम आपका मिस हो रहा है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, आप क्या करेंगे, 1 माइनस हिट रेशियो कर दीजिए तो वो आपका मिस रेशियो हो गया। तो 1 माइनस अल्फा, ये क्या सिग्निफाइज कर रहा है, ये सिग्निफाइज कर रहा है कि आपका मिस हो गया है। अब मिस हो गया तो आप क्या करेंगे उस केस में भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले टीएलबी को एक्सेस करेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि मिस हुआ है। अब टीएलबी को मिस करने के बाद क्या करेंगे, आप पेज टेबल को एक्सेस करेंगे, फिर क्या करेंगे आप, फिर मेन मेमोरी को एक्सेस करेंगे, और पेज टेबल को जो एक्सेस करने का टाइम है दैट इज इक्वल टू द मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। तो आप अगर इस
टर्म को अगर आप यहां से ओमिट करना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। ओके, अब इन दोनों फैक्टर को अगर आप ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू टीएलबी का एक्सेस टाइम प्लस अल्फा इंटू मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू टीएलबी को एक्सेस करने का टाइम प्लस 2 बार मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस स्टूडेंट्स? अगर मैं इसी Yes, को और अगर लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पे लिखूं अल्फा इंटू टीएलबी को एक्सेस करने का टाइम प्लस मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू टीएलबी को एक्सेस करने का टाइम प्लस मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम। ये समझ में आया? इसको मैंने ऐसे कैसे कन्वर्ट कर लिया, ये समझ में आया? यस सर। ओके, तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो इसको हम डायरेक्टली अब क्या लिख सकते हैं, अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अल्फा इंटू टीएलबी प्लस अल्फा इंटू टीएम, और यहां पे टर्म मिलेगा अल्फा इंटू टीएलबी माइनस ऑफ अल्फा इंटू टीएलबी माइनस ऑफ अल्फा इंटू टीएम, और एक टीएलबी प्लस टीएम मिल जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, टीएलबी time to access the TLB memory to time to access main memory plus 1 minus alpha into time to access the main memory। क्योंकि आपका ये जो पूरा पार्ट है ना, ये कन्वर्ट किस में हो गया, यहां पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? yes sir, किसी को भी नहीं समझ में आया तो बताइए। क्लियर है? आगे बढ़े। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। चलिए, तो अब अगर मैं आपको वैल्यू दे दूं, वैल्यू मैं आपको प्रोवाइड कर दूं कि चलिए निकालिए कि आपका क्या वैल्यू होगा इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। तो कैन यू फाइंड द वैल्यू वेयर वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 80%? बाकी सब तो गिवन है आपको। कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू? यस स्टूडेंट? सिंपली आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन दोनों को सबसे पहले ऐड कर ले जो मैंने बताया अभी आपको, तो क्या हो जाएगा 120 प्लस 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा 0.2 इंटू मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम 100, तो ये क्या बन जाएगा आपका 120 प्लस 20, दिस विल बिकम 140 नैनो सेकेंड। ओके, दिस इज 140 नैनो सेकेंड। और अगर जब आप सिर्फ पेज टेबल के हेल्प से जब आप कर रहे थे तो उस केस में हमारा क्या आ रहा था 2 इंटू मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम, तो उस केस में क्या आ जाता, अगर यही सारे वैल्यूज को अगर हम कंसीडर करते तो हमारा क्या आ जाता 200 नैनो सेकेंड का टाइम आ जाता। तो टीएलबी को अगर हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हमारा टाइम आ रहा है 140 नैनो सेकेंड इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, और अगर हम सिंपल पेज टेबल के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं विदाउट टीएलबी तो आपका क्या आ रहा है 200 नैनो सेकेंड का टाइम आ रहा है। ओके, आप यहां पे देख सकते हैं विच इज इट इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू आपका क्या होगा, अभी हम 80% ही अल्फा की वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम यहां पे जो न्यूमेरिकली आपका साइंटिफिकली प्रूव है वो वैल्यू की, इट इज अप्रोक्सीमेटली 95 to 98% हिट रेशियो,
तो अगर आप 95% हिट रेशियो अगर कैलकुलेट करके चलेंगे तो उस केस में भी आपका क्या आ जाएगा, 120 प्लस 0.5 125 0.05 इंटू 100, तो उस केस में क्या हो जाएगा 120 प्लस, इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 125 नैनो सेकेंड। ओके, यहां पे जो कैलकुलेशन किया गया ना इस स्लाइड में, वो क्या किया गया है, आपका इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम को बहुत ही निग्लेजिबल मान के चला है और उसको डायरेक्टली क्या किया, रिमूव कर दिया है। ठीक है, डायरेक्टली उसको रिमूव कर दिया गया, दैट्स वाई यहां पे आप कहीं भी उसको नहीं पा रहे होंगे। ओके, सो दिस इज द केस वेयर वी यूजिंग द TLB टू access the to implement the page table. Now I am providing you a link for today's attendance. Kindly fill it up. I have provided you link for today's attendance. Right now 21 students are here. Kindly fill it up. And number of student is very less. As I told you student, do remember that कि आपका each and everything is calculating. आपका attendance भी calculate हो रहा है, ठीक है। Okay, half of the student have responded to this. Now move upon to the next topic, which is memory protection. Okay. So till now we have seen that the implementation of page table. We have also seen that how we can implement with the help of TLB. Now we will see there are some of the entries in the page table also, which is helping us to protect the memory, that it will not be wasted or anything else. So memory protection implemented by associating protection bit with each frame to indicate if read only, read write access is allowed. मतलब किस टाइप का एक्सेस आपको परमिटेड है, ये कुछ प्रोटेक्शन बिट के थ्रू क्या किया जाता है कि स्टोर किया जाता है इंफॉर्मेशन इन द पेज टेबल। ठीक है, और हर एक फ्रेम के साथ ये इंफॉर्मेशन होता है कि आप उसको रीड कर सकते हैं या रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। इट मीन चेंजेस भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन बिट के हेल्प से हम क्या करते हैं, मेमोरी को प्रोटेक्ट करते हैं। कैन ऑल्सो एड मोर बिट टू इंडिकेट पेज एग्जीक्यूट ओनली एंड सो ऑन। नाउ
ये तो हो गया प्रोटेक्शन के बारे में विद द हेल्प ऑफ अ बिट प्रोटेक्शन। ओके, नेक्स्ट आते हैं वैलिड इनवैलिड बिट। तो आपका जो ईच एंट्री होता है पेज टेबल में, वो वैलिड इनवैलिड बिट इज आल्सो अटैच्ड टू द ईच पेज टेबल एंट्री। अगर V है, वैलिड है, तो ये सिग्निफाइज करता है, इंडिकेट दैट एसोसिएटेड पेज इन द प्रोसेस लॉजिकल एड्रेस स्पेस एंड इट हैज अ लीगल पेज। अगर आपका जो फ्रेम है स्टोर्ड, उसमें वैलिड बिट की वैल्यू अगर ऑन है, वैलिड बिट की वैल्यू अगर ऑन है, इट मींस 1 है, तो वो ये सिग्निफाइज कर रहा है कि ये जो आपका फ्रेम नंबर जो यहाँ पे डाला गया है, फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 5, ये क्या है, वैलिड है फॉर पेज नंबर 0, पेज नंबर 1। और यहीं पे क्या होता है, एक इनवैलिड बिट भी होता है। इनवैलिड इंडिकेट करता है द पेज इज नॉट इन द प्रोसेस लॉजिकल एड्रेस स्पेस। ओके, इट मींस कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या हो गया कि इट मींस दैट द जो आपका लोकेशन है, जिस लोकेशन में वो स्टोर्ड है, जो एड्रेस जनरेट किया जा रहा है सीपीयू के द्वारा, वहां पे वो चीज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इनवैलिड बिट अगर आपका सेट है तो ये इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है क्या, कि आपका ये जो लोकेशन यहाँ पे दिया गया है इट इज इनवैलिड, यहाँ पे ये चीज है नहीं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ वैलिड इनवैलिड बिट हम ये करते हैं कि वो क्या है, पेज किस टाइप का है, इज इट अ क्लीन पेज और अ डर्टी पेज। और आपका प्रोटेक्शन बिट के हेल्प से क्या हम करते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी टू दैट पेज। एनी वायलेशन रिजल्ट्स इन द ट्रैप ऑफ द कर्नल। वी टॉक्ड अबाउट द ट्रैप एंड ऑल दोज थिंग। और ये कोई भी वायलेशन अगर होता है, मतलब कि इनवैलिड हो गया तो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो गया तो ट्रैप हो जाएगा डायरेक्टली जाकर। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए आपका जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपका लॉजिकल एड्रेस यहाँ पे है, अलॉन्ग विथ उसका क्या है, पेज टेबल में एंट्री प्रोवाइडेड है, पेज टेबल में एंट्री प्रोवाइडेड है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पेज नंबर 0 फ्रेम नंबर 2 में प्रेजेंट है, पेज नंबर 0 फ्रेम नंबर 2 में प्रेजेंट है, पेज नंबर 1 फ्रेम नंबर 3 में प्रेजेंट है, पेज नंबर 2 फ्रेम नंबर 4 में प्रेजेंट है, पेज नंबर 3 फ्रेम नंबर 7 में, फ्रेम नंबर 8, फ्रेम नंबर 9 इस तरह से प्रेजेंट है। और यहीं पे यहाँ क्या है, वैलिड इनवैलिड बिट भी है। V सिग्निफाइज क्या करता है कि ये क्या है, वैलिड है, और I क्या सिग्निफाइज करता है कि ये इनवैलिड है। इट मींस पेज नंबर 6 में कह रहा है कि पेज नंबर 6 जो है वो फ्रेम नंबर 0 में है, जबकि फ्रेम नंबर 0 में तो कुछ भी नहीं है। तो I जो यहाँ पे है, I वो क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि ये क्या है, इट इज इनवैलिड, इट इज इनवैलिड, इट विल डायरेक्टली गो इनटू द ट्रैप, ये ट्रैप में चला जाएगा। इट मींस कि इस लोकेशन पे फ्रेम नंबर 0 पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे 0 जो शो किया जा रहा है उसके अलॉन्ग विथ जो आपका वैलिड इनवैलिड बिट है, आप उसी से पता कर पा रहे हैं कि इट इज अ डर्टी और इट इज अ क्लीन। वैलिड है तो क्लीन है, और अगर इनवैलिड है तो डर्टी है। सिंपल। सभी को समझ में आया दिस अबाउट द कॉन्सेप्ट रिलेटेड द डर्टी पेज एंड वैलिड इनवैलिड बिट, प्रोटेक्शन बिट सभी को? इसी में क्या होगा, प्रोटेक्शन बिट भी लगा होगा कि किस टाइप ओनली है, या रीड एग्जीक्यूट है, या रीड राइट एग्जीक्यूट है, आपको किस टाइप का एक्सेस प्रोवाइड किया गया किस पेज के अलॉन्ग। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन प्रोटेक्ट आवर मेमोरी ऑल्सो। यस स्टूडेंट, सभी को समझ में आ गया है भी या नहीं? यस सर। यस, देयर विल बी मोर वाइवा ऋषिकेश। अभी आपका सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, देयर विल बी मोर वाइवा, डोंट वरी। ये 10 ही नंबर का वाइवा था, 10 नंबर का वाइवा मैं और लूंगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। Let's see how many of you have responded to the 24 student। सभी का अटेंडेंस हो गया ना यहाँ पे जो भी प्रेजेंट है? यस सर।
ओके, और जिनका अटेंडेंस लो होगा उनको अटेंडेंस वाले कॉलम में 0 मार्क्स ही जाएंगे। यस पप्पू, टेल मी। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि वीडियो हटा देने के लिए, और क्या क्या रीजन है उसके पीछे? कैन आई नो दैट? Yes, Papu, you was telling something? Okay. What kind of problem they have? Tell me what kind of problem they have. What is the reason of the problem? Privacy. What is privacy? वहां पे आपका कोई फोन नंबर तो है नहीं, आपको कोई मेल वेल आए क्या उससे? It goes on the social media. Yes, classes can go on the social media. Tell me the exact problem. ओके ओके ओके, इसीलिए मैं बोलता हूं। अच्छा, क्यों मजाक बना रहे हैं? आपका आपने अच्छा से वाइवा दिया नहीं क्या? क्या प्रॉब्लम क्या हुआ है? ओके, अच्छा, तो क्लासेस के भी वीडियो नहीं डाले जाएंगे तब तो क्लासेस के भी वीडियो नहीं डाले जाए, क्योंकि तब भी तो मीम बनेगा और आप लोग के जूनियर हैं वो देख पाएंगे कि आप लोग क्लास में भी तो सोए रहते हैं। ओके, एनीथिंग एल्स? क्लासेस आप लोग करते हो नहीं? और मैंने बहुत जो वाइवा हुआ है उसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं, अभी मैंने इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे भी नहीं है, ठीक है? और अगर अभी ये आप लोग का हाल है तो अगर मैं इन डेप्थ क्वेश्चन पूछने लग जाऊंगा तो व्हाट विल बी हैपन? Concentrate on your studies for that. मैं तो यही बोलना चाहूंगा आप लोग सभी को। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि अगर आपको डेडलॉक पूछा गया वो नहीं पता है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया वो नहीं पता है, पीसीबी क्या होता है वो पूछा गया नहीं पता है, प्रोसेस क्या है, जो बेसिक क्वेश्चन है, अभी तो मैं डेप्थ में आया भी नहीं हूं और वो भी आप लोग से नहीं बन रहा है और उसमें भी आपको बेइज्जती लग रही है कि तो ठीक है, बेइज्जती का भी थोड़ा तो स्वाद चखना चाहिए ना, पढ़ना तो है नहीं तो बेइज्जती हो लो कम से कम। नंबर तो देख ही लिए हो तुम लोग और नंबर मिल भी जाएंगे, टेस्ट में भी कोई असर नहीं है तुम लोग को।
वाइवा में भी इवन जो मैं RMDIR जो मैंने टेस्ट में क्वेश्चन पूछा है आपका, वही क्वेश्चन मैंने वाइवा में भी पूछा कि RMDIR क्या वर्क करता है, वो तक आप लोग को नहीं पता होता है। तो क्या मतलब है, टेस्ट भी ले रहे हैं, उसका भी क्वेश्चन आपने रिवाइज किया नहीं, इट मीन्स। Okay, student, I am ending today's session right here, right now. Thank you. Have a nice day.